کشمیر میں یہ تھا کہ انڈیا ظلم کر رہا تھا اور اس نے ان کو ایک جیل میں دھکیل دیا تھا, پورے کشمیر کو انہوں نے جیل بنا دیا تھا. تو اس ایشو پہ عمران خان کی جو فارن پالیسی تھی وہ بالکل درست تھی. افغانی روپیہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. پہلے 10 روپے کا 1000 افغانی آ جاتا تھا, اب جو ہے 2.5 افغانی کا 1 پاکستانی روپیہ آتا ہے. یہ کیوں؟ بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کی بڑے کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک جو محض اس میں اس کو قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو ساری انکم تھی نا اس میں کوئی ان کو ریزنیبل حصہ نہیں ملتا تھا. ہمارے جو علماء مولوی حضرات ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑا فن ہے, تو ایسا جذبہ جگا لیتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب سائڈ میں ہو جاتے ہیں, ہم آگے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال. میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ کچھ ٹائم سے بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ بارڈر ہو یا پھر انٹرنل میٹرز ہو. پاکستان میں طالبان کی یا پھر دہشت گردی کی ویو دوبارہ سے آنے لگی ہے. اس پر ابھی پاکستان کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے تو ہم افغانستان کے اگینسٹ ملٹری آپریشن کر سکتے ہیں. اس پر افغانستان کے طرف سے افغان طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر پاکستان نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا یا ایسا کچھ افغانستان کے اگینسٹ کیا تو ہم 1971 کی ہسٹری ریپیٹ کر سکتے ہیں. اسی والے سے پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ 1971 میں کیا ہوا تھا جو کہ افغانستان والے ریپیٹ کر سکتے ہیں. کیا وہ ایک دوبارہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں یا پھر 93,000 فوجی جو کہ سرنڈر ہوئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی پبلک کیا کہتی ہے جانتے ہیں پاکستان کی پبلک سے, اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. آپ سے اگر سوال کروں, ابھی افغانستان کے افغان طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اگر پاکستان ہمارے اگینسٹ کچھ کرے گا تو ہم اسے 71 کی 1971 کی ہسٹری یاد کروا دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ بات پتہ کیا ہے, بات میں آپ کی سن رہا تھا ابھی. جی جی, آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن سب کے مسلم ممالک کے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے جو حکمران آئے ہیں نا جو پہلے گزر گئے شریف خاندان تھا, ان ساروں کا کاروبار انڈیا میں ہے. یہ ہمیں بڑا ادھر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کاروبار انڈیا میں. کون سا کاروبار؟ انہوں نے جو ہے نا ہمیں بہت گرا دیا ہے پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا ان لوگوں نے نا. انہوں نے ہم بلیم مطلب الزام پھر انڈیا پہ یا کسی دوسرے کنٹری کسی میں نہیں لگا رہا, ہمارے اپنے ہی گندے ہیں. ہماری غلطی ہے, میری غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, ہمارے اپنے ہی غلط ہے. گھر کا جب سربراہ غلط ہوتا ہے نا تو وہی گھر ڈوبتا ہے. ٹھیک ہے, بہتری کیسے آئے گی, ریلیشن بہتر کیسے ہو پائے گا اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ؟ میرے خیال سے تو بہت مشکل ہے. جو حالات پیدا کر دیے ہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اتنا گرا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے شیشے میں. ایسا ہی ہے, انہوں نے ہمیں اتنا گرا دیا. انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا اس ٹائم امیج ہے, ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ. پاکستان زیرو. ہم نے امید نہیں ہارنی, ہم نے امید رکھنی ہے پاکستان کو بہتر امیج پہ لے کر آنا, اور وہ تبھی کیسے لے کر آئیں گے, وہ تبھی شاید لے کر آئیں گے جب ہم اپنی غلطیوں کو مانیں گے, جب ہمارے سیاستدان ہمارے لیے سوچیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم دوسروں پہ الزام لگانا بھی چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا, دوسروں پہ الزام جب لگتے ہیں, جب انسان خود غلط ہوتا ہے دوسروں پہ الزام دے رہا ہوتا ہے اپنی غلطی چھپانے کی. چلیں, بہت شکریہ. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ چودھری نصیر احمد ایڈوکیٹ. چودھری نصیر احمد ایڈوکیٹ, زبردست. میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشن ہے, تھوڑا سا مجھے بتائیں آج کل کیسے ریلیشن چل رہے ہیں؟ بیسیکلی جی افغانستان ہمارا برادر کنٹری ہے, نیبرنگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے, پھر اسلامک کنٹری بھی, اسلامک کنٹری ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیبرز کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ بہت اچھے, یونیک, مثالی ہونے چاہیے. وہاں سے ریاکشن آیا کہ اگر پاکستان نے ملٹری آپریشن کیا تو پاکستان کو 1971 کی ہسٹری یاد کروا دیں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بیسیکلی ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں آنے چاہیے, نہ ہماری گورنمنٹ کو بھی نہیں. ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایسے غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. اور ان کے رد عمل میں جو ان کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس رہنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ وہ رد عمل میں تھا تو رد عمل والا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سیکنڈری اسٹیٹمنٹ ہے. بیسیکلی تو جو زیادتی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز کر رہے ہیں ان کو ایسے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ کے علاوہ ویسے کیا زیادتی کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا ایسا کر رہے ہیں کہ افغانستان والے ناراض ہو رہے ہیں, یا پھر ہماری کوئی غلطی نہیں؟ سری لنکا کے لیے ہم تیار ہیں. کہ آپ کی ڈریم 11 تیار ہے؟
बेसिकली कि हमारे यहाँ जो खारजा पॉलिसी है, अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, ये जो अभी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट में कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तो 2 से 3 अरब रुपया अपने टूर्स पे खर्च कर दिया है, कोई नेशनल इशू को आज तक उसने डिस्कस किया ही नहीं। फिर ये है कि फॉरेन पॉलिसी ये है आपकी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आज तक, जब से ये पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया ही नहीं। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये है कि दोनों तरफ से ये है कि हालात कशीदा हो रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी? और दूसरे नंबर पे हम हमेशा ब्लेम करते हैं इंडिया को कि इंडिया इस्लाम के खिलाफ, इंडिया मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए, इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ कैसे हैं? बेहतर हैं। अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। बांग्लादेश के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। यानी जो हमारे एरिया में इस्लामिक कंट्री हैं उन सब के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं, हमारे खराब हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। फॉरेन पॉलिसी आज़ाद? हाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिक्टेशन लेते हैं। अब वो किन से डिक्टेशन लेते हैं, ये उनके सोचने का काम है। बेसिकली हमारी जो वो खारजा पॉलिसी है वो तो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इनके साथ तो हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि हम इनको ही अपने जो भाई हैं उनको अपना दुश्मन बना चुके हैं। तो इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी जो है, जो करंट गवर्नमेंट जो चला रही है, या किसी के कहने पे भी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये जो नैरेटिव है, ये जो पॉलिसी है, ये अच्छी नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे मुल्क को जो है ये किसी और इशू में धकेल रही है, जो जिस इशू का हमारे पास फिर ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, इस इशू के हाल की तरफ भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि कानून के मुताबिक या ओवरऑल आपकी जो एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक इसका हाल क्या है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि 1971 का जो उन्होंने रेफरेंस दिया, जिक्र किया, 1971 में 2 चीजें मेजर हुई थी। एक तो हमारे 93,000 जो सोल्जर थे वो सरेंडर हुए थे, कैदी बने थे, और एक बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ था। अफगानिस्तान ने भी किसका रेफरेंस दिया होगा? 93,000 फौजी सरेंडर होने का रेफरेंस दिया होगा कि बांग्लादेश जो अलहदा हुआ उसका इशारा दिया होगा? देखें, इस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर कट कोई बात नहीं कही जा सकती, चूंकि ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट के पीछे कोई जो स्पेक्ट्रम उन्होंने दिया है, इसके पीछे जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, या जिस सिनेरियो में उन्होंने बात की है, तो उस सिनेरियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली वो एक वार की बात कर रहे हैं। तो वार में तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी पे ये है मुसल्लत भी हो सकते हैं, कोई आप पे भी मुसल्लत हो सकता है। तो इस तरह से ये कबल अज़ वक्त है ये बात का डिटरमिन करना कि मतलब ये है कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। वार में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। हल क्या है? बेहतरी कैसे आ सकती है नेबर के साथ, खास तौर पे अपने जो हमारे नेबर हैं, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? कैसे इस सोच से बाहर निकल सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा, इस्लामी नेबर और नॉन इस्लामी नेबर, ये इस सब को एक इंसानियत के तौर पे हम देखेंगे तो ही शायद हमारा फायदा है। कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सर, इसमें मैं ये सोचता हूँ, मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत, उसकी खारजा पॉलिसी जो थी नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल वाइड बहुत अच्छी थी, इफेक्टिव थी, जामिया थी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट में ये था कि अफगानिस्तान, ईरान के साथ हमारे ऐसे तल्लुकात बहुत अच्छे थे, मिसाली थे, कोई थ्रेट्स नहीं आ रही थी या कोई ऐसे सख्त बयानात का तबादला नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, रिलेशन तब से मजीद, मतलब समझ लें रिलेशन एंड है ऑलमोस्ट। इंडिया के साथ तो बेसिकली आज भी हमारे कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, वो भी, लेकिन जो थोड़े बहुत थे वो ट्रेड बंद करके बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ट्रेड तो इसीलिए उन्होंने कंट्री के इंटरेस्ट में की ना, कि जो हमारे जो फार्मर थे, जो हमारे ग्रोअर थे, उनका नुकसान हो रहा था, उनकी चीजें उनको जो उनकी कास्ट थी वो उनको ज्यादा पड़ती थी, ठीक है, और वो उनकी चीजें मार्केट में सस्ती बिकती थी। कोई एक चीज अपने फार्मर को, अपनी लैंड के, अपने लोगों का भला सोचा कि आप बाहर से क्यों चीजें मंगवाते हैं जो आपके मुल्क में है। दूसरा ये कि जो कश्मीर में टायरनी हो रही थी, जो कश्मीर में ये था कि इंडिया जुल्म कर रहा था और उसने उनको एक जेल में धकेल दिया था, पूरे कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया था। तो इस इशू पे इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और वो बिल्कुल हमारी पूरी पब्लिक का एक नैरेटिव था। कोई भी एक्शन लिया जाए, अगर लीडर खास तौर पे सर कोई एक्शन लेता है तो लीडर कोई एक्शन लेता है तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव हमें पॉइंट नजर आए तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसकी ये पॉलिसी या इसका एक्शन अच्छा था। इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, मान लिया कि वो इस वजह से थी कि हमारे जो अपने किसान हैं वो उन्हें फार्मर को फायदा पहुंचे, या फिर अगर जो हमारा नैरेटिव है पाकिस्तान में हम कहते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर पे
जुल्म कर रहे थे, क्या अब इंडिया में इसका मतलब है हमने ट्रेड बंद कर दी? अगर लेट्स सपोज वो तब जुल्म कर रहे थे तो अब हम उनका जुल्म खत्म हो गया हमारी ट्रेड बंद करने से, और सेकेंडली हमारे फार्मर को बहुत फायदा हो गया, अब हम कहीं से नहीं गंदम ले रहे, कहीं से चावल नहीं ले रहे। नहीं, अब पिछले 10 महीने में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इनकी पॉलिसीज का जो जिम्मेदार वो इमरान खान की या इमरान खान की पार्टी तो नहीं ना। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब ने एक डिसीजन लिया कि मैं ट्रेड बंद करूंगा, आपने उसकी लॉजिक ये बताई है जो कश्मीर की वजह से और दूसरा अपने फार्मर को फायदा पहुंचाने की वजह से। मैं ये कह रहा हूँ क्या आप कश्मीर, हमने जो हमारा मकसद था हमने वो कश्मीर में पूरा कर लिया ट्रेड बंद करने से? नहीं, एक्चुअली बेसिकली बात ये है कि हमने अपना मैसेज देना था। अच्छा, जो हमारा मैसेज उनको चला गया, तो बात ये है कि हमने उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। उनकी प्रोडक्ट्स को हमने कहा कि अगर आप हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, जुल्म सितम करते हैं, उन पे मजालम उठाते हैं, तो इस तरह से ये है कि फिर हम आपके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रख सकते, हम मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, एक बात। और फिर ये है कि कश्मीर की जो थी ना वो बाउंड्री, उसकी जो बेसिक हैसियत थी, जो उसकी एंटिटी थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया था। इस वजह से उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हमने उनकी ट्रेड बंद की। शायद जब से उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है तब से हमने कश्मीर से नजर ही हटा दिया, नहीं तो हमें पता चले कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नहीं डेवलपमेंट हुई, क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, तो फिर हमें आइडिया हो। लास्ट में बेहतरी के लिए हम बात करेंगे कैसे पाकिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो हम आइसोलेशन की कंडीशन में आ चुके हैं, आइसोलेटेड होकर रह चुके हैं, कैसे हम अपने रिलेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। देखिए, कंडीशंस के लिए बेसिक शर्त तो ये है कि आप अपने मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं। फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी होगी, तो फिर उसमें ये होगा कि आप ये देखें कि आपकी जो रीजनल सिचुएशन है, उसमें जो मेन रोल आपके साथ जो प्ले कर सकते हैं पीस के हवाले से, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के हवाले से, आपके मुल्क की इंटेग्रिटी के हवाले से, उसमें एक रोल जो होता है वो आपके नेबरिंग कंट्रीज भी होते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल, जिनके साथ आपके अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। तो हमें चाहिए कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बैठकर अगर कोई हमारे इश्यूज हैं भी तो उनको पीसफुली हमें रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान से खराब हो रहे हैं? आए दिन हमारे जो उनसे रिलेशन है हमारे नेबर्स के साथ खिलाफ, ना सिर्फ इंटरनल मैटर्स में नहीं हम अपने आप को स्टेबल कर पा रहे, बल्कि एक्सटर्नल मैटर भी हमारे खराब हो रहे हैं। वो आपस की अपनी हमारी जो है ना चपकलिश है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की भी चपकलिश है, और फिर आर्मी के साथ जो है हमारा कोई फटा रहता है हर वक्त। जो है एक पार्टी कहती है ये चीफ है, दूसरी पार्टी कहती है ये चीफ है। हम अपने ताल्लुकात आपस में बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ना अफगानिस्तान के साथ मिलेगा, ना ही इससे अलग होगा। अगर हम आपस में स्ट्रांग होंगे, मुत्तहिद होंगे, आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे होंगी, तो फिर इंशाअल्लाह लजीज जो है ना पाकिस्तान को आंच भी नहीं आएगी। और बाकी रही बात अफगानिस्तान की, जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अफगानिस्तान के साथ ऐसा ऐसा हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मतलब पहले हमें खुद को बेहतर करने की जरूरत है, अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत है, फिर ही हम किसी नेबर के साथ बात करने के काबिल होंगे या रिलेशन बेहतर करने के काबिल होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं तो फिर दूसरों के साथ बात की जा सकती है। एक पार्टी आती है कोई और मुआहदा करती है, दूसरी पार्टी आती है कोई और मुआहदा करती है, लेकिन हम आपस में कशमकश का शिकार हैं। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बुरी हो चुकी है पाकिस्तान की। इसके मुकाबले में एक अफगानी रुपया जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। पहले 10 रुपए का 1000 अफगानी आ जाता था, अब जो है 2.5 अफगानी का 1 पाकिस्तानी रुपया आता है। ये क्यों? सोचने वाली बात है मेरे लिए, आपके लिए, और जो पाकिस्तान के ऊपर गवर्नेंस में लोग बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके लिए सोचने वाली बात नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये एक ऐसा थिंक टैंक बनाए पाकिस्तान, कोई भी पार्टी आए, किसी की भी हुकूमत आए, वो थिंक टैंक अपना काम करता रहे। पॉलिसीज मेकिंग जो है ना वो पुराने बंदे जो हैं पड़े हुए और कड़े हुए वो इकट्ठे हो गए एक थिंक टैंक बनाए, ठीक है, तो बेहतरी आ सकती है। हमेशा अगर थोड़ा सा हम अपनी हिस्ट्री को देखें, हमारी एक आदत रही है या फिर एक मतलब हम ऐसा करते हैं कि कुछ भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर होता है हम ब्लेम कभी लगा देते हैं, कभी इल्जाम लगा देते हैं यहूदियों पे, या ज्यादातर हम इल्जाम लगा देते हैं जी इंडिया ने करवाया। बांग्लादेश की दफा भी हमने कह दिया इंडिया ने करवाया, फिर अभी अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब है तभी हम कभी कुछ लोग कहते नजर आते हैं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या हमें अपनी बेहतरी को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है या दूसरों पर इल्जाम लगाने की जरूरत है? कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे कि फलां कर दो फलां कर दो, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, पाकिस्तान वालों ने किसी की बात ना माने। आपस में कम से कम मुल्की बका के लिए, मुल्की फायदे के लिए आपस में हमें सोच अपनी इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान को किसी किस्म का बाहर से भी नुकसान न पहुंचे ना अंदर से। आपस के लड़ाई झगड़े पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग हैं, अपनी जगह, वो हमारे घर के मामला हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें अपना इमेज बेहतर करना है तो रिलेशन बेहतर करने चाहिए। रिलेशन बेहतर करने चाहिए, हमें एक पेज पे इकट्ठे होना चाहिए। अच्छा,
इंडिया के रिलेशंस की अगर बात करें इस्लामिक कंट्री के साथ या फिर इस एशिया के में जो इस्लामिक कंट्री हैं, खासतौर पे अगर हम बात कर लें अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, जो हमारे नेबर्स में आसपास में आते हैं, और ईरान की बात कर लें, उनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, हम इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद नहीं रिलेशन अच्छे कर पाते, क्या वजह है? बस ये आपस का जो है ना, ये खींचातानी जो है कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, मुझे गवर्नमेंट मिल जाए। रजीम जो है चेंज करने के लिए अपने मुखालिफ उठ जाते हैं अंदर से ही, ये नहीं सोचते कि मुल्क का इसमें फायदा है या नुकसान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि वक्त की जरूरत है, इस टाइम पाकिस्तान की जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ ठीक रखने हैं, और वो रिलेशन तभी ठीक होंगे जब हम पॉजिटिव गेस्चर देंगे। अगर हम हार्श स्टेटमेंट देंगे तो फिर रिलेशन मजीद खराब होंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिस एग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।